Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will cover our human resource planning or human resource management subject, and our first chapter is human resource planning. Human resource planning. It is a process by which an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position. It is the process by which a firm ensures that it has the right number of people and right kind of people at right place at the right time, doing things for which they are economically most useful. मतलब सही टाइम पे सही जगह पे सही तरीके के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं सही नंबर में, जिन्हें हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस कर सकें हमारी फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। फिर उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। HRP जो है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग करता है, पीछे नहीं देखता, ये हमेशा आगे की लिए प्लानिंग करता है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। The demand and supply of human resource keeps fluctuating throughout the year. Therefore, it is a continuous process. Next, integral part of corporate planning. Manpower planning is an integral part of corporate planning because without the corporate plan there is no manpower planning. हमारे कोई corporate हमारे organization के अंदर कोई planning नहीं होगी तो उसके बिना हमारी मैन पावर प्लानिंग भी नहीं हो सकती। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा अगर हमारा जो HRP है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा ऑटोमेटिकली। देन आता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव मीनिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल, और क्वालिटेटिव मतलब कि राइट क्वालिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, like planning which is long term and short term depending on the need of the hour. Human resource planning keeps long term goals and short term goals in view while predicting and forecasting the demand and supply of human resource. Involves study of manpower requirement. Human resource planning involves the study of manpower availability एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें मैन पावर रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने हमारे करंट है और कितने हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी नीड को फुलफ़िल करेंगे। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ हैविंग अ मैन पावर प्लान इज़ टू हैव एन accurate estimate of the number of employees required with matching skill requirements to meet organizational objectives. Forecast personnel requirement क्या करता है, पर्सनल रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करता है। HRP determine the future manpower needs in an organization. cope with changes के साथ चलता है। मैन पावर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कॉप विद चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन इन एन इफेक्टिव वे। अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है मैन पावर प्लानिंग हमारी। दैन उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा यूज़ एग्जिस्टिंग मैन पावर प्रोडक्टिवली by keeping an inventory of existing personnel in an enterprise by skill level, training, educational qualification, work experience, it will be possible to utilize the existing resources more usefully in relation to the job requirement. Then आता promote employees in a systematic manner. हमें जो हमारे employees है उसको एक systematic manner में प्रमोट करना चाहिए, उनका प्रमोशन करना चाहिए। मैनेजमेंट decide on the promotion of eligible personnel in the organization. Provide information. Human resource planning is highly important for identifying surplus and utilized human resources. Skillful employee recruitment. When a company recruit new employees, it is responsibility of human resource manager to select the skillful and experienced applicants as per company's requirements. Accessing training and development needs.
It is essential to have continuous training and development programs for enhancing basic skills, concepts, changing attitude and performance of the employees. Employees का जो चेंजिंग बिहेवियर होता है, उनके परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, उनको देखते हुए हमें जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देने चाहिए उनको, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एनहांस हों। देन आता है इंश्योर करियर प्लानिंग, उनकी करियर प्लानिंग भी इंश्योर करनी चाहिए। Human resource planning cannot be effective without proper and adequate career planning. It provides valuable information about human resources and their skills to facilitate career planning. Now, importance of human resource planning. Reservoir of talent, एक ही रिजर्व है टैलेंट्स का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम इसे द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ रिजर्वियर ऑफ टैलेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पीपल विद रिक्वायर्ड skills are readily available to carry out the assigned task. Prepare people for future. Human resource planning क्या है? वो लोगों को प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए. People can be trained, motivated and developed in advance, and this helps in meeting future needs for high quality employees quite easily. Then आता है expand और contract. Human resource planning से क्या है, या तो हम रिक्रूट करके एक्सपेंड कर लेंगे हमारी फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ क्वांटिटी को, या फिर हम टर्मिनेशन वगैरह करके उसको कम कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। देन आता है कट कॉस्ट। अब हमारी स्किलफुल और इफ़ेक्टिव जो मैन पावर होगी उससे हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। देखो, प्लानिंग फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मैन पावर बजट for each department or division. This in turn helps in controlling manpower cost by avoiding shortage and excesses in manpower supply. Then आता है cope with dynamic environment. अब देखो, हमारे चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट और स्किल डिमांड्स पर्सोनल की चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव फोर्स को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट्स की डिमांड एडवांस होती जा रही है, लोगों की गवर्नमेंट रेगुलेशंस में चेंज आता जा रहा है, कल्चरल फोर्सेस हमारे, तो क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि HRP हेल्प्स इन कॉप विद डायनेमिक इन्वायरमेंट। देन आता है की टू मैनेजरियल फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हमारा मैनेजरियल फंक्शन है। प्लानिंग करेंगे सबसे पहले, देन ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे पर्सोनल की, देन उनको लीडिंग करेंगे, फिर उनको डायरेक्ट करेंगे, और देन उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, इवेल्युएट करेंगे सारी परफॉर्मेंस को, और फिर करेक्टिव मेजर लेंगे। देन नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग द HR मैनेजर्स इंक्रीज द मोटिवेशन लेवल ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, दैन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। HRP से क्या है, हमारा बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ का और जो ओनर का है उनके पीसफुल रिलेशंस होंगे। देन आता है हायर प्रोडक्टिविटी। अब हमारे पास स्किलफुल और इफेक्टिव मैन पावर होगी तो उससे क्या हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। द ऑर्गेनाइजेशन कैन एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी लेवल बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड एनर्जीज। ऑल्टरनेटिवली कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू इंजीनियरिंग, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट एंड अदर टेक्निक्स हेल्प टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। देन आता है विन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। There are many companies who directly sell goods and services to the government. बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को गुड्स और सर्विसेज सेल करती हैं। ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस फॉर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट द कंपनीज हैव टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैन पावर रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन करके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है। विद प्रॉपर HR प्लानिंग HR मैनेजर कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट थ्रू एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेट द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप प्रोग्राम्स इन एडवांस। देन आता है हमारी लिमिटेशन ऑफ HRP। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है। देखो, एक तो लैक ऑफ एक्यूरेसी होगा,
It's not possible for every organization to accurately track the current and future trends and convert the same into meaningful action guidelines. Like factors such as absenteeism, labor turnover, seasonal trends in demand, competitive pressures, technological changes, and a host of other factors may turn the rest of manpower plans as fashionable decorative pieces. तो इससे हमारा लैक ऑफ एक्यूरेसी होगा। देन आता है एब्सेंस ऑफ सपोर्ट। अगर हमारे जो है HR डिपार्टमेंट को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो भी ये हमारी एक लिमिटेशन होगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, क्योंकि HRP हमारा क्या एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग है। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है वो अच्छे से रन नहीं हो सकेगा। देन आता टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अब देखो हमारी सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि कितने मैन पावर रिक्रूटमेंट की हमें ज़रूरत है, कितनी टर्मिनेशन करनी है, देन कौन से प्रोसेस से करेंगे हम ये सब। तो ये हमारा HRP जो प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। देन कहते हैं एक्सपेंसिव प्रोसेस। HRP प्रोसेस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। HR मैनेजर हैज़ टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जॉब डिज़ाइन करना पड़ता है, कंपनसेशन देते हैं, ओवर टाइम के लिए पे करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग एंड सो ऑल दिस एक्टिविटीज़ टेक टाइम टू कंप्लीट एंड लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस मैन पावर। अगर हमारे पास सरप्लस मैन पावर हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम होगा, तो हमें वो टर्मिनेशन ले ऑफ करके उनको रिमूव करना पड़ेगा, तो सरप्लस मैन पावर प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर आता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सो ऑन which affects the employment opportunities. Accordingly, the company may have to appoint or remove people. देन आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल। नेशनल लेवल पे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करेंगे? इट फोरकास्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द एंटायर नेशन। जब हम पूरे नेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड और सप्लाई के लिए फोरकास्टिंग करते हैं तो उसे कहते हैं नेशनल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना। देन आता है सेक्टरल लेवल पे। सेक्टरल लेवल पे जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, टेरिशरी सेक्टर के लिए मैन पावर की फोरकास्टिंग करते हैं उसे कहते हैं सेक्टरल लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देन आता है इंडस्ट्री लेवल। जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, तो उसे बोलते हैं इंडस्ट्री लेवल। यूनिट लेवल, जब हम किसी एक स्पेशल यूनिट या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करने की प्लानिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं हम यूनिट लेवल। देन आता है डिपार्टमेंट लेवल। जब हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए मैन पावर फोरकास्टिंग करते हैं कंपनी की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए तो उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल लेवल। देन आता है जॉब लेवल। जब हम किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं मैन पावर की, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर होगा, ये सब हमारा होता है जॉब लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। थैंक यू। नाउ प्रोसेस ऑफ HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम असेस करेंगे हमारी करंट वर्कफोर्स को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सोनल है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास। टेक इन्वेंट्री ऑफ द करंट एम्प्लॉयज़ एंड देयर स्किल्स। असेस करके हमारे करंट वर्कफोर्स को फिर उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें फ्यूचर में कितने पर्सोनल की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे फोरकास्ट फ्यूचर नीड्स। असेस करके करंट वर्कफोर्स को फिर हम फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर नीड्स के रिगार्डिंग। डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड इन द फ्यूचर। क्वांटिटीज़ मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए होंगे हमें, और क्वालिटी वाइज किस स्किल में, किस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट स्किलफुल एफिशिएंट एम्प्लॉयज़, उन बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे हमारे फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए। देन आता है आइडेंटिफाई गैप्स। गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे हम कंपैरिजन करके करंट वर्कफोर्स और हमारी फ्यूचर नीड्स को आइडेंटिफाई करके। हमारे पास जो करंट वर्कफोर्स है
उसको हमारी फ्यूचर नीड से कंपैरिजन करके जो हमारा गैप आएगा, डिफरेंस आएगा, वो होगा हमारा रिक्वायर्ड वर्कफोर्स। देन आता है डेवलप प्लान्स। अब हमें कितने पर्सोनल की ज़रूरत है वो सब देख के हम हमारे प्लान्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट प्लान्स टू एड्रेस गैप्स थ्रू रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड अदर एक्शंस। कितने पर्सोनल की हमें ज़रूरत है ये सब डिटरमाइन करके हम प्लानिंग करेंगे कैसे, कौन से वे से हमें रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं और कैसे उनकी अदर एक्टिविटीज़ रन करी जाएंगी। ठीक है। देन आता है इम्प्लीमेंट प्लान्स। फिर प्लानिंग डेवलप करके उसके बाद हम हमारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, पुट द प्लान्स इनटू एक्शन। देन हमारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उन्हें प्रॉपरली मॉनिटर करेंगे और एवेल्यूएट करेंगे। ट्रैक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान्स एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। इवेल्यूएट करेंगे, अगर उसमें कोई हमें लगता है कि कमी है तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। अगर बिल्कुल ट्रैक पर चल रहे हैं तो फिर हम इफ़ेक्टिवली हमारे प्रोसेस को रन करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।